हेलो ऑल। आज हम देखेंगे क्या होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वी विल एक्सप्लोर इट इन सिंपल वर्ड्स, या फिर आसान भाषा में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड यूज ऑफ इट। Before we move on, thank you to all our subscribers for your support. Please like, share and subscribe those who haven't, so that we can make more videos, more interesting videos. Thank you. Okay. So what we will talk about कि AI क्या है, history of AI, उसके types कैसे हैं, क्या है, and how it works, what are different applications of it. So we'll go through all these stuffs today and we'll try to अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली कि वो कैसे काम करता है। और अगेन बहुत सारी बातें होती है कि अबाउट थ्रेट्स टू द जॉब ऑफ ह्यूमंस, कि एआई हमारे जॉब्स ले लेगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे क्या ये पॉसिबल है, फिजिबल है, किस लेवल तक, उसमें भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो व्हाट इज एआई? एआई इज, in broader sense, intelligence exhibited by machine, or AI is a technology that enables computers and machine to simulate human intelligence and problem solving capabilities। मतलब क्या कि machines को सोचने के लिए empower करना ही AI होता है। So intelligence means what? Intelligence is the ability of a person to analyze the information and use it to achieve its goal to make decisions. So जो decision making है उसी को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, कि जो इंफॉर्मेशन है उसको समझ के काम करना। ठीक है। सो and artificial is man-made. So humans don't have any means humans are blessed with the natural intelligence, but machines don't have any kind of intelligence. Okay, intelligence मतलब machines, like there are automation machines, there are like automobiles and everything, but those are operated by humans. Those are some of like automated machines which runs on its own, but again it is runs on a fixed particular task, and that is based on a fixed particular parameters. So it doesn't make any of its own work, or any of its own decision to or change in the pattern of the work. So that is a standard machines. But AI based machines are the machines which would be able to think ki 100 times I have executed this task, but when I'm doing 101 time first time, then I can make certain changes in the parameters, and the output will be different or better. So based on the 100 executions of that particular task, वो मशीन अगर ये सोच सकती है कि हाँ अभी मैं इस तरह से करूंगा तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा, उस चीज को हम कहेंगे एआई। और सो इस चीज में सबसे जरूरी चीज है डेटा। मतलब मशीन अपने आप नहीं सोच सकती, तो उसको सोचने के लिए हम कैसे उसको प्रेरित कर सकते हैं कि उसको हम डेटा दिखा सकते हैं। ओके, दीज आर दी 100 स्टेप्स एग्जीक्यूशन से हुआ है, ऐसे ऐसे चलने पे ये रिजल्ट है, ऐसे ऐसे चलने पे ये रिजल्ट है। उसके बाद उसको लगेगा कि मैं ये चेंज करके ये रिजल्ट ला सकता हूँ, तो वो चीज को करवाना उस मशीन से इज अ एआई। हिस्ट्री ऑफ एआई। 1950 एलन ट्यूरिंग पब्लिशेस कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इन दिस पेपर, ओके, इन्होंने पेपर पब्लिश किया था एलन ट्यूरिंग ने, और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म कौन किया था, कैन मशीन्स थिंक। ओके, so Alan Turing is often known as father of computer science. Okay, whoever has learned like in computer engineering, computer science का study करते हैं तो इनका reference जरूर आता है, theory of computer science, and he is referred as the father of computer science, जो भी आज हम algorithms और programs देख रहे हैं। Okay, he is also known for breaking the German Enigma code. So Enigma एक मशीन थी जर्मन्स जिससे कम्युनिकेट करते थे। Okay, and it was impossible to crack it. Like he helped to crack the Enigma code, and that helps that played a key role in Allied forces winning the World War II. Okay,
So another great scientist John McCarthy, इनको father of AI बोला जाता है, 1956 में he coins the term artificial intelligence. Then in 2004 he writes the paper what is AI. Then he proposes the standard definition over there, and then in 2023 we are seeing everything, everywhere AI is there. We are seeing ChatGPT, we are seeing Alexa, we are seeing Siri, generative AI, self-driving car. So in the back of last 20-30 years, a lot of improvement happens in the network like internet. Second is the cloud computing and third is the big data. So big data और cloud computing की मदद से जो डेटा प्रोसेसिंग करके मशीन्स को रियलाइज करवाना कि दे कैन मेक डिसीजंस, उसके लिए जो प्रोसेसिंग पावर, डेटा हैंडलिंग का कैपेबिलिटीज़ है, वो जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है उससे पॉसिबल हुआ है. इसलिए अभी बहुत सारा एआई पिक्चर में है. ओके, टाइप्स ऑफ एआई. एआई के प्रकार, इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI, दैट इज वीक एआई. वीक एआई मतलब क्या कि एआई इज डूइंग वन पर्टिकुलर टास्क एट अ टाइम. जो एक मॉडल है एआई का, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना हुआ है और वही करता है. एग्जाम्पल अलेक्सा, सीरी, सेल्फ ड्राइविंग कार. ओके, सो इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटा मॉडलिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग. ओके, सो और उसका दूसरा मीनिंग ये है कि द मशीन्स आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन, सो दे आर नॉट क्लोज टू ह्यूमन ब्रेन, इसलिए उसको नैरो इंटेलिजेंस कहा गया है. सो आज जो भी हम एआई देखते हैं हमारे सिस्टम्स में, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, और चैटबॉट्स है या चैट जीपीटी है, ये सारे एप्लीकेशंस है, दोज आर पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी. और दूसरी कैटेगरी है जो स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं, उसमें एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बोला गया है. ये अभी तक थियोरी में है, प्रैक्टिकली भी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा नहीं गया है एज पर माई नॉलेज. तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि एआई का जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमंस के बराबर हो सकता है, उसमें वो काम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट ऑल्सो दे कैन स्टार्ट थिंकिंग, लर्निंग ऑन देयर ओन, अपने खुद के आइडियाज से लर्न करेंगे, ना कि ह्यूमन के जो डेटा ह्यूमन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर. उसके बाद दे कैन प्लान फॉर देयर फ्यूचर. ओके, और सुपर इंटेलिजेंस मतलब दे आर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन. ओके, उनका जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमंस के लेवल पे बढ़ जाएगा. देन इट कुड बी लाइक अ थ्रेट, जो हमेशा मूवीज में हम देख चुके हैं, मैट्रिक्स सीरीज में देख चुके हैं, या टर्मिनेटर में जो मशीन है, इट विल टेक ओवर एवरीथिंग एंड इट विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग दी अदर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज लाइक ह्यूमन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. बट अभी तक ये थियरी में है. So currently it is not close to implementation. So these are the types and mostly all the AI जो हम काम कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में भी जिसके ऊपर हमें काम करना है, it is of this narrow intelligence. How it works. So AI काम कैसे करता है. So based on the weak AI का जो हमने कंसेप्ट देखा या फिर narrow intelligence का कंसेप्ट देखा, उसके अनुसार वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या प्रोसेस हो सकता है जैसे एआई का काम चलता होगा. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डेटा. ओके, और जो बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले 10-15 सालों में, लास्ट 5-10 ईयर्स एटलीस्ट, उसमें जो प्रोसेसिंग पावर आई है एक साथ में, और हैंडलिंग ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में आई है, एंड दैट हैज़ यील्ड टू एन एप्लीकेशन ऑफ अचीविंग द एआई. ओके, सो क्या होता है कि मशीन इज नॉट बॉर्न विद द इंटेलिजेंस. ओके, सो मशीन को हम लोग, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑटोमेशन हो, उसको एक स्टेप्स दी जाती है एंड दैट मशीन परफॉर्म्स दैट स्टेप. ओके, बट अभी उस परफॉर्मेंस के स्टेप्स के साथ क्या होता है कि हर परफॉर्मेंस के साथ मशीन अपना एक डेटा मेंटेन करने लगती है,
और उस डेटा को बार बार फीड करके उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने की एक प्रोसेस चालू हो जाती है, और उस प्रोसेस का आउटपुट धीरे धीरे आता है प्रिडिक्शन में या फिर डिसीजन मेकिंग में या फिर मशीन लेवल की थिंकिंग में। तो ये स्टेप्स क्या है इन जनरल कि लाइक कलेक्ट द डेटा, प्रोसेस द डेटा, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन मतलब कि आपको क्या एप्लीकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एनएलपी है, जैसी स्मार्ट आपका स्पीकर हो गया, ओके, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, ओके। सो इनिशियली जब एलेक्सा लॉन्च हुआ था इट वाज इन इंग्लिश, बट शायद अभी हिंदी में भी एलेक्सा आपकी बात सुन सकता है, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, ओके। देन मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल टेस्टिंग, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग मतलब फिर से डेटा कलेक्ट द डेटा, प्रोसेस द डेटा। सो क्या है कि बहुत सारा डेटा जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूशन of the results is collected, then it is processed in a manner such that it is presented in a manner to the model, तो मॉडल उस डेटा को पढ़ सके, उसको रीड कर सकते, एंड देन सो एनएलपी हो गया, उसके बाद इमेज रिकॉग्निशन हो गया, या फिर मतलब बहुत सारी इमेजेस होगी, और उस हर एक इमेज में अगर एक एनिमल दिख रहा है या फिर एक स्टैचू दिख रहा है तो उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, बहुत सारा प्रोसेसिंग बिट लेवल पे जाके उसका स्किन टोन या फिर उसका नेचुरल हेयर, ये सब डिटेक्ट करवाना, ओके, इमेज प्रोसेसिंग में यूज हो सकता है। सो व्हाट एवर योर मॉडल, लाइक डीप लर्निंग इज योर मॉडल, जो भी मॉडल होता है उसको ट्रेन करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसको टेस्ट होने के बाद फिर से you deploy it again, you get new set of data. So this is a continuous process. So when you set up this whole cycle, then you make an AI work, okay. So this is like a basic funda of how it works, कैसे ये काम कर सकता है, क्योंकि मशीन को खुद का कुछ नहीं है, बट वो किस आधार पे सोचने के लिए एम्पायर होगा, वो सिर्फ अपने डेटा के हिसाब से चलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ एआई, वैसे तो बहुत सारी जगह पे एआई का एप्लीकेशन होगा ग्राउंड लेवल पे, और वी एवरीवेयर जहाँ पे प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, वो हर उस बिजनेस कैटेगरी में, हर उस जगह पे एआई का एप्लीकेशन आने वाले समय में आएगा। अगर हम देखेंगे तो मेन एरिया जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन एक एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग स्मार्ट स्पीकर्स है, एलेक्सा या सीरी जैसे सिस्टम्स है। उसके बाद कंप्यूटर विजन मतलब बहुत ब्रॉड है, जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग होगा, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग हो सकता है, आइडेंटिफाइंग या फिर एमआरआई स्कैन्स, एक्सरे स्कैन्स, इन सारे का डेटा कलेक्ट करके प्रेडिक्ट करना डिसीजेस को या फिर ह्यूमन हेल्थ के बारे में। सो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। कस्टमर सर्विस में मोस्ट ऑफ द वी सी नाउ द चैटबॉट्स, हर एक वेबसाइट में एक पॉपअप देखेंगे आज। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग। सप्लाई चेन मतलब IoT ड्रिवन, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, we will have another video on it on detail. So supply chain management में AI बहुत उपयोगी हो सकता है। स्मार्ट ट्रक्स या फिर स्मार्ट व्हीकल्स होंगे IoT ड्रिवन, जो कंटिन्यूस डेटा गैदर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हेल्प ऑफ सेंसर्स। उसमें रोड पे जहाँ पे ट्रक चल रहा है, फॉर एग्जांपल तो ट्रक चल रहा है तो उसका रोड का टेम्परेचर, रोड की कंडीशन, और उस हिसाब से स्पीड, किस स्पीड पे इंजन पे कितना स्ट्रेस हो रहा है, एयर कंडीशन का कितना ऑप्टिमम यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस अलग अलग कैटेगरी में डेटा कलेक्ट करके उस डेटा को प्रोसेस करके मॉडल बन सकते हैं, और जिसमें वो बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट ट्रक वुड मेंटेन स्पीड, मेंटेन इट्स बैलेंस एंड इम्प्रूव दी ओवरऑल फ्यूल इफिशिएंसी हो गया, या फिर परफॉर्मेंस हो गया, या फिर डिलीवरी टाइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। वेदर फोरकास्टिंग अभी भी है, बट वेदर फोरकास्टिंग को और एडवांस किया जा सकता है। वी कैन डिटेक्ट earthquakes at least a few hours before it hit based on the data, large amount of data collected from the earth's surfaces, या फिर it can detect avalanche जो लैंडस्लाइड होता है, या फिर सुनामी। ये सब चीज़ें इसके बहुत सारा हाई लेवल का डेटा, बिग डेटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेसिंग करके इन सब एरियाज में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। और अगर हम अगर इस हिसाब से सोचेंगे कि क्या AI ह्यूमंस का जॉब ले रहा है या नहीं ले रहा है,
for example, everything when it comes, people get scared, like automation came, yeah, robotics came, but robotics is there since 19 maybe say 70s or 80s, but लोगों की जॉब नहीं गए हैं, rather we have identified new jobs. So humans again is a superior race, so हमको सिर्फ अडेप्ट करना है, हमको सीखना है, और जो भी हम अभी देख रहे हैं, जनरेटिव एआई हो गया, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब बेसिकली एल्गोरिदम्स, डेटा एल्गोरिदम्स और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से लेकर हम लोग सीख सकते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड कर लीजिए, बिग डेटा. सो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग सीख के अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन वी कैन बिकम अ एआई प्रोग्रामर, एआई engineer that would help this AI to control the AI again. It should not go into the super intelligence, और अगर ये super intelligence में जाने की राह पे है तो पहले इसको देख लो. तो हमको AI trained associates के लिए jobs आएंगे फ्यूचर में, और यही होता आया है. So yeah, I think it's not going to be that scary. Okay. Again, thank you for going through our video. यहाँ पे ये रेफरेंसेस है, दिस विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो, जो और डिटेल्स हमको प्रोवाइड कर सकती है एआई के बारे में, एंड वी विल मेक मोर डिटेल वीडियोस और प्रोग्रामिंग वीडियोस इन फ्यूचर. थैंक यू.